Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blood of Jesus, blood of the Lamb. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो. Hallelujah. Worship you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name. King of glory, we worship you, Jesus of Nazareth. King of glory, King of glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Father, we come before you to pray for the Middle Eastern nation, particularly the Gulf nation. We present Gulf countries before you. We Arabian nations, Father. May they come, your spirit penetrate. May your spirit move upon the deserts of Saudi Arabia, Lord. We pray for Dubai. Father, we pray for Bahrain. We pray for Qatar. We pray for Doha. We pray for Muscat and Oman, Father. We pray for all those Gulf nations. Nazareth, in the mighty name, in the holy name of Jesus, Father, we bring before you the sons of Ishmael, that they may know Yahushua HaMashiach, ताकि वो तुझे जाने यीशु नासरी. The Middle East will know you. The Gulf nations will know you. We pray for the Gulf nations before you. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you. सब प्रार्थना करें Gulf nations के लिए. We committed, we'll pray, we'll intercede for Gulf nation, we'll pray for India, and we will also pray for Britain. We'll pray for the Prime Minister of Britain, Mr. Boris Johnson. He is a man who stands with Israel. We pray for him that God will heal him. Hallelujah. That corona shall be defeated in his body, that Holy Spirit will flow in the body of British Prime Minister in the name of Jesus of Nazareth. तेरे खून को हम बोरिस जॉनसन के ऊपर छिड़कते हैं यीशु मसीह. प्रभु, हम भारत के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, भारत के उन लोगों के लिए जो खुदावंद इस कर्फ्यू के कारण अपने घरों में, वो गरीब लोग खुदावंद जिनके पास अपनी आजीविका के लिए, परिवार चलाने के लिए संसाधन नहीं, यीशु मसीह, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा खून छिड़कते हैं. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे एंजल्स प्रोविजन निकालें उनके लिए यीशु नासरी. हालेलुया. Every conspiracy, Father, every occultic and dark thing that is behind corona, Father, it will be revealed, it will be exposed in the name of Jesus. And all the elite and the globalist and the evil folks that are behind corona, who are trying to hijack this world, they are trying to push their new world order agenda. Those evil forces, Father, that your angelic host will fight against them. In the mighty name of Jesus, Satan will not be able to break the dimension till the time. Father, it is time only, in your time. Father, we plead the blood of the Lamb. We plead, हम बर्रे के लहू को छिड़कते हैं, यीशु मसीह के खून को छिड़कते हैं. We sprinkle the blood of Jesus, Father. Hallelujah. Hallelujah. We declare your kingship. We declare your lordship. We declare your authority over COVID-19 in the name of Jesus. यीशु मसीह की अथॉरिटी को COVID-19 के ऊपर हम रिलीज करते हैं. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for all the Gulf countries. Your spirit will flow. Your hand will move, Father. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो. यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा हो. Lord, we bless your name. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you. Man doesn't have to be rocket scientist in order to fathom why this pestilence is stalking in the earth and why it's assassinating countless people. It is man's iniquity that has unleashed the gates of hell. और यदि व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वापस लौटे, पश्चाताप करे, प्रभु से क्षमा हासिल करे, प्रभु कहता है मैं तेरी पृथ्वी को फिर बहाल करूंगा. हालेलुया. अगर तू अपने आप को विनम्र करे और दीन होके प्रभु को ढूंढे और प्रार्थना करे उपवास के साथ, तो प्रभु कहता है मैं तेरी धरती को फिर से हरा भरा करूंगा. हालेलुया. प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की शाम. प्रभु, जब हम तेरे वचन की ओर देखते हैं, प्रभु तू अपने वचन से बोल और बातें कर. यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं.
Thank you, Jesus. Hallelujah. I welcome you all. There are some folks from the US and other places, Britain and other places. Some of you don't know English. And there are other people online who do not know English. And there are few who do not know English at all. तो मुझे हिंदी में I'll have to go in हिंदी, और बीच बीच में मैं इंग्लिश में बैक एंड फोर्थ आता रहूँगा. हम अध्ययन कर रहे हैं. वी बिन स्टडिंग ऑन बुक ऑफ रेवलेशन एंड वी बिन डिगिंग थ्रू द स्क्रिप्चर्स. हम यीशु मसीह ने कलीसियाओं के नाम जो पत्रियां लिखवाई उसके ऊपर मनन कर रहे हैं. हमने परगमम की कलीसिया के विषय में सीखा, और अगली जो कलीसिया है, चौथी कलीसिया, उसका नाम है थुआतीरा की कलीसिया. मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु क्या कहते हैं. टू द एंजल ऑफ द चर्च इन थयाटीरा राइट, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द सन ऑफ गॉड, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love, your faith, your service, and perseverance, that you are now doing more than you did at first. So Jesus is actually appreciating, he is commending this church for so many good things. जो काम ये कलीसिया कर रही है उसके लिए यीशु मसीह इस कलीसिया को उत्साहित करते हैं. Nevertheless, I have this against you. लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे तेरे विरोध में ये कहना है. You tolerate that woman Jezebel who calls herself a prophet. By her teaching she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to the idols. प्रभु कहते हैं मुझे तेरे से ये शिकायत है कि तू उस औरत को जिसका नाम इजाबेल है उसे अपने बीच में आज्ञा देता है. And Jesus is saying she calls herself a prophet. By her teaching she misleads my servants into sexual immorality and eating of food sacrificed to the idols. वो मेरे दासों को बदकारी करने के लिए उकसाती है. हालेलुया. मैं आपको थयाटीरा की कलीसिया के विषय में बताऊंगा. मैंने बहुत अरसे से अध्ययन किया इन बातों के विषय में, जो मैं आज आपको की आत्मा के द्वारा से मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में. आई लाइक यू टू टर्न टू रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 10 रादर. प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय का 10 वचन. यहाँ पे लिखा है, ऑन द डे ऑफ द लॉर्ड आई वॉज इन द स्पिरिट. प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया. एंड आई सॉ द वॉइस स्पीक अनटू मी. हिंदी की बाइबल में पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 1 का 10. प्रभु का दास यूहन्ना, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के दास यूहन्ना को डोमिशियन नाम के एक रोमन एम्परर ने, जो बड़ा क्रूर था और यीशु मसीह के भक्तों के साथ नफरत करता था और प्रभु यीशु मसीह के लोगों का दमन करता था, उसने पहली कलीसिया के लोगों को सताया, मारा, जेलों में ठूसा, भूखे शेरों के आगे डाला. डोमिशियन ने यूहन्ना किसी विधि से मरा नहीं, उसने उबलते तेल में डाला, लेकिन प्रभु ने यूहन्ना को बचा लिया. भूखे शेरों के आगे डाला तो भी प्रभु ने यूहन्ना को बचा लिया. तो उसने यूहन्ना को पैटमस के आइलैंड पे, एक टापू पे समुंदर के भेज दिया, जहाँ पे खूंखार किस्म के कैदियों को डाला जाता था और वहाँ अक्सर लोग मर जाते थे. वहाँ पे स्वच्छ पानी का केवल एक स्रोत था और खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी. लेकिन अगर आप आज उस आइलैंड पे जाएंगे, पैटमस के आइलैंड पे, तो आपको वहाँ एक छोटा पहाड़ मिलेगा और उस पहाड़ के ऊपर एक गुफा है. उसे केव ऑफ रेवलेशन कहते हैं. यीशु मसीह का दास यूहन्ना और उसका एक और साथी विश्वासी भाई उसी गुफा में रहे. और उसी गुफा में प्रकाशित वाक्य 1:10 में जब यूहन्ना लिखता है तो कहता है, आई वॉज इन द स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे. एंड द ग्रीक वर्ड हियर इज गिनोमाई, which literally means I was translated into the spirit dimension. पवित्र आत्मा मुझे अचानक उड़ा के दुनिया में ले गया. यूहन्ना एकदम अचानक से पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को उठाया और रूहानी आलम में ले गया. और यूहन्ना वचन में लिखा है आवाज को देखता है. रूहानी आलम में, स्पिरिट रेल में आप आवाज सुनते नहीं हो,
बल्कि आवाज को देखते हो। हालेलुया। और वहां पे वो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाता है। प्रभु यीशु मसीह शब्द के बीच में चलता फिरता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उस जलाली यीशु मसीह का दर्शन यूहन्ना करता है, क्योंकि प्रभु ने कहा था जब तक ये परमेश्वर के राज्य तक ये जीवित रहे। तो ये भ्रांति फैल गई थी कि यूहन्ना मरेगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह उसे बता यूहन्ना को के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे कि यूहन्ना मुझे मेरे स्वर्गीय स्वरूप में देखेगा, इलाही स्वरूप में देखेगा। और चरणों में ऐसे गिरा मानो मर गया, तो प्रभु उसे उठाते हैं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अलफ और ताब हूं। देख मैं मर गया था लेकिन अब जी उठा हूं। और देख मौत की, थेनाटोस ग्रीक वर्ड है, और अधोलोक की, हेडीज ग्रीक वर्ड है, थे मौत और पताल। यीशु मसीह ने इन दोनों देवताओं को हराया और कुंजियां यीशु मसीह ने अपने हाथ में ले ली। और यीशु मसीह ने कहा देख मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया। मैंने आपको परगमम की कलीसिया के विषय में बताया। परगमम was the most magnificent city in the entire Lydia, the crown jewel. It was like diamond. It was a beautiful architectural city. अगर आप उसके आज भी रूइंस देखेंगे, ब्यूटीफुल गॉथिक आर्किटेक्चर, रोमन ग्रीक आर्किटेक्चर, यहाँ पे बहुत अमीर एलीट लोग रहते थे, पॉलिटिशियन रहते थे, बड़े बड़े लोग रहते थे, और ये सिटी बहुत रिच थी, कमर्शियल सिटी थी। लेकिन ये जो शहर था परगमम शहर में आक्रमण करने के लिए अरब से और पूर्व देश के राजा आते थे। तो उस समय के लोगों ने इसकी रक्षा के लिए एक और सिटी तैयार किया, छोटा सा सिटी, जिसका नाम था थयाटीरा। थयाटीरा एक बैरिकेड था परगमम की रक्षा करने के लिए। तो परगमम के अमीर अमीर लोगों ने, धनी लोगों ने थयाटीरा को एक बैरिकेड के रूप में बनाया। लेकिन थयाटीरा एक छोटी सी कॉलोनी थी और 1 लाख से ज्यादा रोमी सिपाही वहां पे रहते थे। और उन रोमी सिपाहियों के खाने की, पीने की, कपड़े की, हर तरह की व्यवस्था करने के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वहां पे थी। वहां पे छोटे छोटे कारखाने थे, स्किल वर्क वहां पे हुआ करता था, जिसे हम थयाटीरा बोलते हैं। और थयाटीरा के अंदर प्रभु के दास आते थे, प्रभु का वचन फैलाते थे, और थयाटीरा में एक कलीसिया की स्थापना की गई। एक कलीसिया थयाटीरा में स्थापित की गई। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, थयाटीरा की जो हिस्ट्री है, हिटाइट किंगडम, हित्तियों की बादशाहत जो 3000 बीसी पहले, आज से 5000 साल पहले हुई, उस बादशाहत ने इस शहर को बनाया था। और 500 बीसी में, आज से 2500 साल पहले, पर्शियन लोगों ने, जिन्हें आज हम ईरान कहते हैं, उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया और अपने कब्जे में लिया। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसके ऊपर कब्जा किया, और फिर उसके बाद ये अलेक्जेंडर के एक बड़े सेनापति के कब्जे में थी ये सिटी थयाटीरा। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बड़े बड़े बैरिकेड थे और ये एक मिलिट्री की जगह थी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, समय में जब इंडस्ट्रीज बनती थी इस कल्चर में, ग्रीक कल्चर में, तो वहां पे इंडस्ट्रियल गिल्ड बनाए जाते थे। उन्हें इंडस्ट्रियल गिल्ड बोला जाता था, जिन्हें हम आज बोलेंगे यूनियन, वर्कर यूनियन। तो अलग अलग वर्कर यूनियन थी, ब्लैक स्मिथ की, गोल्ड स्मिथ की, कारपेंट्री की, लकड़ी के या लोहे के काम की, सुनारों के काम की, कपड़े की, टेक्सटाइल कारखाने अलग अलग चीजों के बनाए जाते थे, और गिल्ड बोला जाता था उनको। और वो गिल्ड जो होती थी, उस गिल्ड की कमेटीज होती थी, और ये सभी शैतानी गिल्ड थी। हर एक गिल्ड के अपने अपने देवता होते थे, वो उनकी पूजा किया करते थे। जैसे हमारे देश में भी एक दिन लोग औजारों की पूजा करते हैं, तो वो अपने अपने टूल्स की पूजा किया करते थे। और किसी भी व्यक्ति को थयाटीरा में काम नहीं मिलता था जब तक वो गिल्ड का मेंबर ना हो। और अगर किसी को गिल्ड का मेंबर बनना पड़ता था काम लेने के लिए, तो उसे उनके कागजों पे सिग्नेचर करने पड़ते थे, जिसमें यह भी होता था कि वो उनके सारे प्रोग्राम में भाग लेगा, जो भी वो अकल्टिक प्रैक्टिसेस करते थे, जादूगरी की या ऑर्जीज करते थे, जादूगरी करते थे, देवताओं की पूजा करते थे। उसके बाद सेक्सुअल ऑर्जी होती थी,
सेक्स और गंदे काम और दारू पीना और मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन खाना, ये काम होते थे। तो जो विश्वासी प्रभु के लोग यीशु मसीह के लहू से धुले, आपको मालूम कलीसिया को बोला जाता है एक्लिसिया, एक्लेसिया, दो वर्ड्स है। एक ग्रीक में टू कॉल आउट, कॉल लेसिया आउट, आवाज दे के बाहर बुलाए गए लोगों का झुंड। तो प्रभु के जो लोग होते थे ये इस गिल्ड का मेंबर नहीं बन पाते थे, क्योंकि ये अपनी लॉयल्टी, इनकी जो प्रभु के लिए समर्पण है कि ये प्रभु को छोड़ किसी और के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। और प्रभु के लोग अगर हैं तो मूर्तियों के आगे चढ़ा हुआ खाना नहीं खाएंगे। अगर प्रभु के लोग हैं तो व्यभिचार से, शारीरिक गंदे कामों से प्रभु ने इन्हें आज़ाद कर दिया है। तो ऑर्जीज में, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में, अकल्ट की, जादूगरी की जो वो मीटिंग होती थी उसके अंदर ये शामिल नहीं होंगे। तो मसीहों के लिए मुश्किल हो जाता था काम ढूंढना थयाटिरा में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमन जो एम्पायर है, रोमन टाइम का आप अध्ययन करें। रोम का साम्राज्य बहुत स्ट्रिक्ट था। रोम में अगर आप एक शहर में रहते हो तो वहां पे आपकी आईडी बनती थी। आप सरकारी परमिशन के बगैर उस शहर को छोड़ दूसरे शहर में नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पे जो कलीसिया थी, यहाँ के लोग थयाटिरा को छोड़ किसी और शहर में जा भी नहीं सकते कि वहाँ जाके काम करें, आजीविका चलाएं। तो इनको यहीं रहना पड़ता था। तो प्रभु क्या बताते हैं इस संदर्भ में, इस बैकग्राउंड में? अब आप थयाटिरा की कलीसिया के विषय में समझने की कोशिश करें। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु इस कलीसिया को इसके विश्वास के लिए, प्रभु इसके सब्र के लिए, प्रभु इसकी सेवा के लिए और जो भले काम ये करते थे उसके लिए इनकी सराहना करते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, नेवरदलेस आई हैव दिस अगेंस्ट यू, यू टॉलरेट दैट वुमन जेजबेल who calls herself a prophet. By her teaching she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to the idols. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. So I will cast her on bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely unless they repent of her ways. I will strike her children dead. प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि मुझे तेरे साथ एक शिकायत है, और वो ये है कि तू उस औरत इजाबेल को, इंग्लिश में वर्ड है जेजबेल। आपको मालूम हिब्रू में दो हिब्रू सिलेबल से बना ये शब्द जेजबेल। आपको मालूम इसका मतलब क्या है? जेजबेल का मतलब है बाल इज माई हस्बैंड, बाल देवता मेरा पति है। समझ रहे हैं आप क्या मतलब है इसका? और इसका एक और मतलब है, बाल इज गोइंग टू एक्सॉल्ट मी, बाल मेरा पति है और बाल मुझे ऊंचा करेगा। ये जो स्त्री है जाइडोनियन है और एक राजा की बेटी है, और इसका पिता याजक है बाल देवता का। और ये इज़राइल में आई है, अहाब के साथ इसने शादी की है। और ये औरत बहुत स्ट्रांग लेडी है, इसने इज़राइल की सत्ता पे कब्जा कर लिया। इसका पति अहाब, आप ये मत सोचिएगा कि अहाब कोई कमज़ोर राजा है। अगर आप सेकुलर हिस्ट्री पढ़ेंगे इज़राइल की, अहाब बड़ा शक्तिशाली राजा था, उसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती, वो बहुत तगड़ा पॉलिटिशियन था, सियासतदान था। इकॉनमी बड़ी बिल्डअप हुई इज़राइल की उस समय, इज़राइल ने तरक्की की। लेकिन अहाब शक्तिशाली राजा होने के बावजूद यहोवा का डरवैया नहीं था, प्रभु से प्रीति नहीं करता था, वो शैतानी देवता बाल की पूजा करता था। और उसने अपनी पत्नी के आगे घुटने टेक दिए थे, इजाबेल के आगे। और वो मैं आपको थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूं। आप ये वचन पढ़ लीजिएगा। ये फिनिशियन औरत है और इज़राइल में घुसी है। दूसरा राजा 9 अध्याय के 22 वचन में पढ़ें और 30 वचन में पढ़ें। विचक्राफ्ट, जादूगरी, होर्डम, सेक्सुअल इमोरालिटी, जनाकारी, हरामकारी, ये सारे काम इसके अंदर हैं। बहुत कनिंग है, बहुत शैतानी दिमाग रखती है। और पहला राजा 18 के 14 में लिखा है, यहोवा के सच्चे नबियों को घात करती है, जो परमेश्वर के लिए बोलते हैं उन्हें मारती है।
क्योंकि इसे परमेश्वर की सच्ची आवाज़ पसंद नहीं। आपको मालूम, पाप करने वालों को, अधर्म करने वालों को परमेश्वर का सच्चा कलाम पसंद नहीं आता, ना परमेश्वर के सच्चे दास पसंद आते हैं। तो उनको मारती थी, और यहाँ तक कि अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, पहला राजा 18 के 4 से 6 तक पढ़ेंगे कि परमेश्वर के सच्चे नबी डर के मारे इससे छिप गए थे। और यहाँ तक कि परमेश्वर का अभिषिक्त महान सेवक एलिया भी इवेंचुअली, जिसके द्वारा आग स्वर्ग से उतरी, जिसने बाल के नबियों को घात कर दिया, जिसके द्वारा आसमान बंद हो गया और कहने से बारिश उतरी, अद्भुत काम हुए, वो भी इससे डर के गुफा में घुस के बैठ गया था। और ये औरत क्या करती थी, ये अपने पति, इसका पति राजा जरूर था, लेकिन इसका पति राजा नहीं था। इसने पूरे इज़राइल के ऊपर नियंत्रण किया हुआ था, और बदकार थी और बुरी औरत थी। तो प्रभु का दास एलिया इसके लिए भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। और क्या कहता है एलिया? कहता है, पहला राजा 21 अध्याय का 25 वचन से आप जब पढ़ेंगे, और दूसरा राजा 9 का 30 पढ़ेंगे, आप दूसरा राजा 9 का 30 पढ़ेंगे, दूसरा राजा 9 का 34 और 35 पढ़ेंगे। एलिया प्रभु का दास भविष्यवाणी करता है, और एलिया प्रभु का दास कहता है, तू मरेगी और कुत्ते तुझे खा जाएंगे। तो वचन बताता है कि अपने छज्जे में खड़ी थी और आईब्रोज बना रही थी और हर तरह के शैतानी मेकअप कर रही थी। तो परमेश्वर अपने दास जेहू को भेजता है, और जेहू रथ पे आता है, और जेहू के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, और वो चिल्ला के कहता है, इस औरत को, बदकार औरत को छज्जे में से गिरा दो। तो उसे छज्जे में से गिरा दिया जाता है, और वो नीचे गिरती है, और जेहू अपना रथ उसके ऊपर से निकाल देता है, और वो चला जाता है। और वो बाद में जेहू आदेश देता है कि वो राजा की बेटी थी, इसलिए उसका संस्कार कर दिया जाए। तो आपको मालूम क्या लिखा है दूसरा राजा 9 के 34-35 में? वचन में लिखा, कुत्ते आए और इज़बेल को खा गए। कुत्तों ने पता क्या छोड़ा? उसकी ये खोपड़ी नहीं खाई, ये नहीं खाया। कुत्तों ने उसके हाथ नहीं खाए, और कुत्तों ने उसके पैर नहीं खाए, क्योंकि उस औरत का दिमाग इतना ज़्यादा शातिर था और पाप से भरा था, और उसके हाथ बुराई की ओर गए थे, नबियों का लहू लगा था, और उसके पांव बदकारी के राह पे जादू, टूना, व्यभिचार, सेक्सुअल इमोरालिटी की ओर गए थे। कुत्तों ने भी उसे खाना मुनासिब नहीं समझा। सिर्फ उसकी ये चीज और उसके हाथ और उसके पांव बाकी रह गए, सारा उसे कुत्ते खा गए, जैसा परमेश्वर के नबी ने कहा था। आपको मालूम, नीति वचन 6 अध्याय के 16 से 18 वचन में पढ़िएगा, 7 ऐसी बदकारियां हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। 7 बदकारियां, और ये सातों की सातों इज़बेल में थी। अब वापस लौटें थुआतीरा की कलीसिया में। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं, कुछ लोगों का विचार है कि प्रभु मेटाफोरिकली बोल रहे हैं, सिंबॉलिकली बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ग्रीक ग्रामर को पढ़ेंगे और इस कलाम को ग्रीक की ग्रामर में समझेंगे, तो आपको ऐसा पूरे का पूरा ग्रीक ग्रामर का टेक्सचर ऐसे बताता है कि ये इज़बेल एक पासवान की बीवी है। इसका नाम शायद इज़बेल नहीं है, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक इज़बेल के हैं, और एक पासवान की बीवी है। और प्रभु क्या कहते हैं, 2 अध्याय का 20 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 2 के 20 में प्रभु कहते हैं, नेवरदलेस आई हैव दिस अगेंस्ट यू, यू टॉलरेट दैट वुमन। गॉड इज एड्रेसिंग परहैप्स द पास्टर। और क्या कहता है प्रभु? तू इस औरत को टॉलरेट करता है। इफी एमे आई ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है तू उसे कंट्रोल करने देता है। वो पासवान शायद अपनी बीवी के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, और ये औरत क्या कर रही थी? जो इज़बेल की रूह है वो मैनिपुलेशन की रूह है, कंट्रोल की रूह है। आपको मालूम, परमेश्वर का आत्मा हमें कंट्रोल नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमें लीड करता है, कभी कंट्रोल नहीं करता। बदरुएं, शैतानी आत्माएं कंट्रोल करती हैं। कई बार पासवान लोगों को लीड नहीं करते, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल की स्पिरिट मैनिपुलेशन की स्पिरिट है। कंट्रोल का रूह शैतानी रूह है। यहोवा मेरा गडरिया है, वो मुझे हरी हरी घास की चराइयों में लीड करता है।
यहोवा मेरे आगे आगे चलता है, मेरी अगुवाई करता है। शैतान कभी आपके आगे नहीं चलता, शैतान आपके पीछे से आपको लात मारता है, और बुराई और पाप करने के लिए शैतान लोगों को पुश करता है। अब ये जज़ाबेल की स्पिरिट है इस औरत के ऊपर, जो शायद चर्च के पासवान की पत्नी है, जिसने पुलपिट के ऊपर कब्जा किया है। शायद कोई शिक्षिका है इस कलीसिया के अंदर। वो क्या करती है, वचन में क्या लिखा है, यू परमिट इजाबेल, और क्या लिखा है, शी सिडूसेस माई सर्वेंट। सिडूस के लिए वर्ड है प्लेनो, जिसका मतलब है मॉरल वॉन्डरिंग, सिडक्शन फ्रॉम द राइट पाथ। सीधे सच्चे मार्ग पे चलने से लोगों को रोकना और लोगों को बदकारी के राह पे चलाना, गंदी शिक्षा देना, लोगों को एंटाइस करना, लोगों के मार्ग में रोड़ा अटकाना ताकि वह पाप के मार्ग पे जाएं। इस तरह की ये शिक्षा है, कंप्रोमाइज की तालीम है। ये औरत क्या कहती है, क्यों प्रभु कहते हैं मैं तेरे खिलाफ हूं, मैं तुझे समय दे रहा हूं कि तू तौबा कर ले। प्रभु बड़े दयालु हैं, प्रभु इजाबेल को भी समय देते हैं कि तौबा कर ले। अभी ये समय है भाइयों, भारत को और संसार को मिला, लूकवार्म ठंडी कलीसिया को मिला, जो प्रभु से दूर है, पासवान, सेवक, अगुए, विश्वासी, उनको मिला है। इस समय जब पूरी पृथ्वी के ऊपर लोगों को घरों में डाल दिया गया है, हम प्रभु की ओर लौटें, अपने जीवन पे गौर करें, घमंड दूर करें, अपना बनावटीपन दूर करें, दिखावा दूर करें, प्रभु को ढूंढें, उसके चरणों में लिट जाएं, प्रभु से कहें मेरे जीवन को छू अंदर से, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं, और अपना जीवन प्रभु के संग सही करें। भाई और बहनों, भयंकर समय पृथ्वी पे आने वाला है, उसके आगमन से पहले प्रभु ने आपको समय दिया है। प्रभु कहते हैं मैंने इजाबेल को समय दिया है, लेकिन वो सुनती नहीं है। किसका समय दिया है? रिपेंट करने के लिए। तो अब असली कहानी क्या है? ये जो इजाबेल है, ये परमेश्वर के लोगों को ये सिखाती है, क्योंकि कोई थिएटरा में काम नहीं कर सकता। अगर कोई मैकेनिक है, या अगर कोई ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, अगर कोई पेंटर है, किसी किस्म का स्किल है किसी के पास, उसे थिएटरा में काम करना है, उसे उस गिल्ड का मेंबर बनना है। उस गिल्ड का मेंबर बनने के लिए डॉक्यूमेंट साइन करना है। उसके अंदर लिखा है कि उन मीटिंग में तुम आओगे, और वहाँ जो जो देवताओं की पूजा की जाती है, उन देवताओं की उन औजारों को देवताओं के आगे रख के पूजा की जाती थी। और जो डिबॉचरी, सेक्सुअल इमोरालिटी, गंदे काम होते थे, जनाकारी, हरामकारी के नाच के, नंगी स्त्रियां नाचती थीं और दारू पीते थे और कच्चा मांस खाया जाता था। तुम उन सभाओं के मेंबर बनोगे तो प्रभु के लोगों को तो शिक्षा मिली कि तुम्हें संसार से मैंने अलग कर लिया। लेकिन ये इजाबेल जो अपने आप को नबी कहलाती है, ये शिक्षा देती थी कोई बात नहीं, आप ये काम कर सकते हो, कोई नहीं, प्रभु देख रहा है, प्रभु को हमारी मजबूरी पता है, अपने बच्चों को भी पालन करना है, संसार भी चलाना है, प्रभु को भी मालूम है। तो ये कंप्रोमाइज की तालीम देती थी, प्लेनो वर्ड सिडूस करती थी, परमेश्वर के लोगों को बुराई के पथ पे डालती थी, ताकि वो मूर्तियों के आगे चढ़ी हुई चीजें खाएं और व्यभिचार करें। तो प्रभु कहते हैं मैं इस झूठी नबिया के खिलाफ हूं। भाई और बहनों, नबूवत का वो रूह जो आपको पवित्र जीवन जीने के लिए उभारता नहीं, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए उभारता नहीं, जो आपको सकरे मार्ग पे नहीं चलाता, परमेश्वर के कलाम की सच्ची शिक्षा, अपने आप का इनकार करना, यीशु मसीह के क्रूस को लेके चलना, पवित्रता और धार्मिकता में जीवन जीना, परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय की गहराइयों में रख के पूरा करना, यदि वो शिक्षा नहीं देती नबूवत का रूह, तो वो इजाबेल का रूह है, शैतानी रूह है। और प्रभु क्या कह रहे हैं? ये टाइम प्रभु ने पश्चाताप करने के लिए दिया है। प्रभु कहता है पश्चाताप कर लो, वरना प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? आई विल कास्ट हर ऑन अ बेड ऑफ सफरिंग, मैं दुखों के बिस्तरे पे इसको डाल दूंगा। एंड आई विल मेक दोज हु कमिट अडल्ट्री विद हर सफर इंटेंसली अनलेस दे रिपेंट ऑफ हर वेज, और वो जो इसकी आज्ञा मानते हैं उन्हें मैं कड़ी सजा दूंगा। प्रभु कहता है बीमारियां, रोग, लानतें, बवाएं भेजूंगा उनके ऊपर। तो प्रभु क्या समाधान बताते हैं? वो तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें। हालेलुया। थयाटीरा की कलीसिया, प्रभु कहते हैं मेरे लिए चमक, मेरे लिए जग,
इस पापी संसार में मेरे लिए जी। दुनिया में परिस्थितियां कितनी भी बुरी और विकट क्यों ना हो, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा। प्रभु आपके लिए पवित्र जीवन जीने के लिए मार्ग खोलेगा। वो आपको मुहैया करेगा, वो आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। वो कहता शेर के बच्चे भूखे सोएंगे, पर मेरे सच्चे तालिब कभी भूखे ना सोएंगे। प्रभु कहता है जिन्होंने मेरी ओर देखा उनके चेहरे कभी काले ना होंगे। जिस तरह सियोन को ऊंचे पर्वतों ने घेरा डाला है, वैसे मेरी करुणा उन्हें घेरती है जो मुझ पे भरोसा करते हैं। प्रभु कहते तेरी आशा कभी ना टूटेगी। हालेलुया। प्रभु कहता है पहाड़ टलेंगे, पहाड़ियां अपनी जगह से हट जाएंगी, तो भी मेरी करुणा की वाचा तुझसे कभी अलग ना होगी। भाई और बहनों, परमेश्वर का राज्य क्या है? कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस बताता है द किंगडम ऑफ गॉड इज राइचियसनेस। धार्मिकता है परमेश्वर का राज्य। राइचियसनेस, जॉय एंड पीस इन द होली गोस्ट, दैट्स द किंगडम ऑफ गॉड। धार्मिकता परमेश्वर का राज्य है। राइचियसनेस इज द किंगडम, एंड व्हेन यू वॉक इन राइचियसनेस यू लिव अ राइचियस लाइफ। Joy and peace will be the fruit of the righteous life that you will live. Hallelujah. ये मैसेज है सच्चा। ये प्रचार नहीं करते प्रचारी लोग। राइचियसनेस का जीवन जिए। God will protect you. He will keep you. No weapon will touch you. No pestilence will come nigh your dwelling place. 1,000 will fall at your side, 10,000 at your right hand, it will not touch you. The arrow that flieth at noontime, the pestilence that destroys at night, they will not touch you. The Lord your God will spread a table for you in the presence of your enemies. No weapon that the enemy has forged in the fire of hell shall ever prosper against you. Your enemy, they who will come against you, one way shall flee in terror 7 ways. The Lord will protect you when you go out, and the Lord will protect you when you come in. Your children shall be like olive shoot around the table. You will prosper, and with your eyes you will behold the reward of the wicked. Not so the unrighteous, they shall be blown away like chaff, but you shall be like a tree planted by the streams of living water. Your leaves shall never wither, and you will bear fruit in all seasons. Hallelujah. Because you delight in the law of the Lord, and therein you meditate day and night. Therefore the Lord will protect you. He will keep you in the safe pavilion of his love. You will hide and find shelter under his mighty wings, and the enemy will not be able to detect you. All the promises that God promised in his word shall come upon you and your children and their children and their children and their children, and God will keep the covenant that he made with you until 1,000 generation if you remain faithful with your creator. Hallelujah. Walk in righteousness, walk in holiness, walk in purity. पवित्रताई का जीवन जिए। ठग विद्या की सेवकाई अब नहीं चलेगी। समझ रहे हैं आप? झूठा कई नबी बोल रहे हैं घरों के बाहर आप ऑयल लगा लो, ब्लड लगा लो, ये सब बोगस प्रॉफिट हैं और दंड आएगा इनके ऊपर। प्रभु कह रहा है आई विल पुट यू ऑन द बेड इजाबेल, फॉल्स प्रॉफिट, रिपेंट। परमेश्वर के लोगों को धोखे से, ठग विद्या से, गलत शिक्षा देना, परमेश्वर के लोगों को गलत पथ पे चलाने की बहुत भयंकर सजा है। मैं झूठे नबियों से यीशु मसीह के नाम में उनको वार्निंग दे रहा हूं। ऑलरेडी गॉड इज रॉथ, सो रिपेंट। फॉल्स प्रोफेसी मत करो इस सीजन में, उसके चरणों में गिर जाओ। सेवकाई हमारी लाइफ है, सेवकाई हमारी लिविंग नहीं है। सुन रहे हैं आप? सेवकाई लाइफ होनी चाहिए, लिविंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरी सुधि लेता हूं, मैं सब कुछ तुझे मुहैया करूंगा। हालेलुया। मैं एक गीत बना रहा हूं, कुछ पहले हमिंग इसकी सुनी थी लेकिन मैंने इसे बनाया है। पंजाबी का गीत है। मैं चाहता हूं हम सब मिलके गाएं। हालेलुया। ये एंड टाइम का गीत है भाइयों और बहनों, आइए मिलके गाएं। तौबा कर ले गुनाह तो गुनेगारा, तौबा कर ले गुनाह तो गुनेगारा, के वक्त आखिरी आ गया। तौबा कर ले, तौबा कर ले
गुनाह तो गुनहगारा के वक्त आखिरी आ गया, तौबा कर ले, तौबा कर ले, आया ने महामारियां, तौबा कर ले, आया ने महामारियां, सारे जग उत्ते पईयां हुण पारियां, सारे जग उत्ते पईयां हुण पारियां, डर डर के जिवें है जग सारा, जग डर डर के जीवे है जग सारा, के वक्त आखिरी आ गया, तौबा कर ले, तौबा कर ले, कर ले। ब्रदर वॉल्टर पांड्यान, प्रेज द लॉर्ड ब्लेस यू ब्रदर, ट्रेमेंडस ब्लेसिंग, द लॉर्ड ब्लेस यू ब्रदर पांड्यान, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। फादर, praise your holy name, we bless you. Father, we know, we understand from your word. Father, we know your nature. You are loving, kind and compassionate. You are slow to anger and abounding in love. For even in your anger, Lord, you remember mercy. Your anger is not some kind of petulant emotion, but your anger is righteous. Father, it is man's sin and iniquity and perversion and man's defilement has opened the floodgates. And this vicious demon, this virus is wreaking havoc around the world. And there are people who still don't want to bend their knees. Their neck are so stiff, Lord. I pray, Father, give them grace. Open their eyes. Let them see the signs of the end times. We are not on the threshold. We are not on the cusp of the end times, brothers and sisters. We are already in it. You're already in it. This world is being hijacked by the forces of darkness. There is a new world emerging. There is a new awakening for those globalists and deep state and those people who are trying to take this world away. You don't even understand. प्रभु की ओर मुड़े, बुद्धिमान बने. Ask him to give you wisdom. Wisdom of God will keep you in these precarious times. We need God's wisdom. You cannot grow in stature. I'm talking about physical stature, talking about spiritual stature. You need to receive constant wisdom from heaven so that you may grow in your spiritual stature. Let's ask God wisdom and light of his word so that we can navigate through these dark times. हम एक भाई हैं, हमारे दीपू भाई हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे सभी मिलके, उनकी पत्नी के लिए कि वो वापस लौटे और उनका जो आपस में झगड़ा है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुलझ जाए. प्रार्थना करेंगे. प्रभु उस भाई को, उसकी पत्नी को आपके चरणों में लेके आते हैं. आप अपने अनुग्रह रूपी हाथ को बढ़ाएं. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सेवक पासवान हैं, एक एक को प्रभु अपने लहू में छिपाइए. जो आपका वचन सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, यीशु मसीह आपके अनुग्रह की वर्षा एक एक जन के ऊपर हो, एक एक कलीसिया मंडली के ऊपर आपकी सामर्थ का साया हो. खुदावंद हालेलुया. हम आपके लहू की कुदरत को पुकारते हैं, लहू के मसा को पुकारते हैं. यीशु मसीह आपके लहू के साए के नीचे जीते हैं. प्रभु कल से फसा की तैयारी है. फसा की रुत आ गई है भाई और बहनों, और ये ऐसी फसा है जिसे प्रभु अपने लोगों को मनाने की अनुमति भी नहीं दे रहा. शायद प्रभु ने कहा मैं रूठ गया हूँ, मुझे तेरी परब, तेरी फसाएं पसंद नहीं. तो भाई और बहनों मैं आपसे तकीद करता हूँ, पश्चाताप करें, प्रभु की ओर मुड़ें, अपना जीवन प्रभु को समर्पण करें. कल सुबह 10:30 बजे फिर हम मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे. लेकिन कल शाम को हम लोग फसा के ऊपर प्रार्थना करेंगे, फसा का वचन सीखेंगे. और अगर आप चाहिए, कलीसियाएं, सेवक, अपने परिवारों में आप प्रभु भोज लीजिए. आप प्रभु भोज ले सकते हैं भाई और बहनों. प्रभु भोज के द्वारा आप इन डार्क टाइम में बच सकते हैं. अपने अपने घरों में प्रभु भोज लीजिए. हालेलुया. इसके अंदर लीगलिस्ट ना बनिए. कई लोग बड़े लीगलिस्ट हैं, ऑनलाइन लेना ठीक है, नहीं है, ये है, वो है, जैसे वचन को बहुत गहराई से जानते हैं वो लोग. ऐसा मत कीजिए.
आइए प्रभु के चरणों में अपने आप को दीन करें, प्रभु भोज लें, उसका बदन और उसका लहू खाएं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आइए मिलके गाएं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। गाइए सब मिलके। आ, रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी, रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद, हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने, जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उन। जय मसीह की। विनोद क्रिश्चियन जी फ्रॉम कनाडा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू ब्रदर देविंदर। गुरचरण जी, भाई निशान, थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे। दयाल मसीह, प्रभु आपको आशीष दे। भाई रमन, यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। सिस्टर एस्थर मलार, गॉड ब्लेस यू। Brother Walter, once again, God bless you. Eric Devan, Sister Richa, God bless you. Silky Lal, the Lord bless you. Sister Cecilia from Canada, God bless you. Hallelujah. प्रभु आपको वहाँ आशीष दे। रोहित मलिक, गुरदेव सिंह, सिस्टर ज्योति एंजेलिना, लॉर्ड ब्लेस यू। अनिल फ्रॉम यूके, लॉर्ड ब्लेस यू। शारदा फ्रॉम हिमाचल, स्पीक ब्लेसिंग ओवर यू। भाई दीपू, आप पे प्रभु की आशीष हो। मनीषा एजल, आपको प्रभु आशीषित करे, बरकत दे। हालेलुया। पास्टर सैम, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर साबी, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ब्रदर पदम फ्रॉम अमृतसर, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर विजय, गॉड ब्लेस यू। अरुण जॉन, पास्टर, द लॉर्ड ब्लेस यू। हालेलुया। ब्रदर स्टीफन, पास्टर स्टीफन, गॉड ब्लेस यू। पास्टर सतपाल जी, लॉर्ड ब्लेस यू। पास्टर विल्सन असगर के पाकिस्तान से, सिस्टर हिमदारी रॉबर्ट, लॉर्ड ब्लेस यू। बिशप साहब, लॉर्ड ब्लेस यू। फ्रैंक गॉडा फ्रॉम द यूएस, लॉर्ड ब्लेस यू। हालेलुया। बिशप इमैनुअल, लॉर्ड ब्लेस यू। ब्रदर मनोहर लाल फ्रॉम दिल्ली, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर जगीर, लॉर्ड ब्लेस यू। बहुत से और नाम है, आप सबको प्रभु आशीष दे। मैं आप सबको एक्नॉलेज करना चाहता था। लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। जिनके नाम मैं मिस कर गया, आप सबको प्रभु आशीष दे। टुमारो 10:30 we will go through Revelation one more time, and tomorrow I think we'll do it 5:30 in the evening. 5:30. Brother Frank Gordoa, the Lord bless you. Hallelujah. Pray for mighty blessings of God upon you. Hallelujah. Tomorrow 5:30 in the evening we'll celebrate Passover. Passover begins tomorrow as the sun sets down. Jesus is awesome. Hallelujah. Sister Himadari Robert Yadav, Lord bless you. Brother Vijay, Lord bless you. Hallelujah. प्रभु आप सबको आशीष दे। I am signing off now. यीशु मसीह के नाम में आप सब पे उसकी आशीष, उसके सुरक्षा का कवच आपके साथ, आपके परिवारों के साथ बना रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।